Chalo, let's start. So if we see the respiratory system of cockroach, you all will write with me, you will make your notes. कोई backlog नहीं चाहिए अभी notes में. Okay, so what is the human respiratory system made up of? This respiratory system of cockroach is also a tracheal system. Trachea present रहेंगे. So trachea are present. There are three things which are present over here. Trachea, spiracles, and the tracheoles. Trachea, spiracles, and the tracheoles. So तीन चीजें प्रेजेंट रहेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट. हम देखेंगे व्हाट आर द स्पाइरिकल्स, वी विल सी व्हाट आर द ट्रकिया एंड वी विल सी व्हाट आर द ट्रक्यूल्स. So it is made up of this trachea. It is a chitinous tube. It's a hard tube. This trachea, it's a chitinous tube. It's a hard tube. Spiracles are the openings. We will see where they are present. And tracheoles are the branches of trachea. Tracheoles are the branches of trachea. So there is trachea, which is a thick tube. उसकी branches होंगी tracheoles. And spiracles वो होंगे openings. Spiracles will be the openings on the lateral side of the body. So now let us see if spiracles are there, how many spiracles are there? So there are 10 pairs of spiracles. 10 pairs, matlab total 20. 10 pairs of spiracles and they are located on the lateral surface. They are located on lateral surface. When I say lateral surface means they are located on pleura. कौन से साइड पे है? lateral side पे है. So we have the pleura on the lateral side. So they are located on the pleura side. Now there are 10 pairs. ये 10 में से 2 pairs are thoracic. 2 pairs, they are in the thorax region. And 8 pairs, they are in the abdomen region. So again an MCQ over here. Total 10 pairs हैं spiracles के. The first 2 pairs are in the thoracic region, thorax में. Next 8 pairs are in the abdomen region, abdomen में. So ये जो thorax वाले pairs हैं, the first pair is between pro and mesothorax. First pair is between pro and mesothorax. Second pair is between meso and metathorax. Second pair is between meso and metathorax. So first pair is between pro and mesothorax. Second pair is between meso and metathorax. Now see the abdominal segments. ये पूरे present रहेंगे first to 8 segments में. 8 pairs are there. These 8 pairs will be present in the first to 8 segment of abdomen. First to 8 segments में ये spiracles present रहेंगे. All the segments, all the abdominal segments are towards the pleura side. Alright, but exception है यहाँ पे the first abdominal segment. First abdominal segment is towards turga. मतलब it is dorsal. Turga or dorsal. So first abdominal segment, it is towards the dorsal side.
Rest all, they are on the lateral surface, they are towards the pleura side. ये exception एक MCQ है. All the spiracles are towards the lateral side, but the first abdominal one, first abdominal segment का जो spiracle है वो टर्गा साइड पे रहेगा, वो डॉर्सल साइड पे रहेगा. So see, spiracles, they are 10 in number, they are openings through which air comes inside. They are openings. कौन से surface पे हैं ये openings? These are openings on the lateral surface. So now I'll do a diagram जिससे you will understand, and you all also do the diagram with me. See, if this is prothorax, then this is mesothorax, this is metathorax, and then these are the abdominal segments. Alright, so now this is the first abdominal segment, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9 and 10. 10 abdominal segments are there. तो अभी फर्स्ट वाला जो स्पाइरकल है, इट इज बिटवीन द प्रो एंड द mesothorax. So here this opening. Second one is between meso and meta. So this is the opening. And there are pairs. तो दोनों साइड से होगा. पेयरिंग है. Abdominal spiracles जो हैं वो सेंटर में लोकेटेड हैं एक एक सेगमेंट के. सी 3, 4, 5, 6, 7, 8 in the first 8 segments. So they will be from here also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 and these 2. Total 20 हैं, लेकिन 8 pairs हैं. So this we will label as spiracles. They are openings on the lateral surface, on the lateral body wall, that is on the pleura. They are openings on the lateral surface, on the lateral body wall, that is on the pleura, जिसके थ्रू एयर अंदर आती है. So now see everybody, spiracles, they are 10 pairs, they are openings on the lateral surface, on the pleura. ये 10 pairs में से 2 pairs are thoracic, the first 2 pairs, and the next 8 pairs are abdominal. Thoracic वाले first is located between the mesopro and the mesothorax, second is located between the meso and the metathorax. And abdominal वाले first 8 segments पे रहेंगे, 9th और 10th segment में नहीं रहेंगे spiracles. And the first abdominal segment is towards the turga side. This is an MCQ which comes exception में. So we have done these. pro और meso के बीच में देखो first pair, then meso और meta के बीच में second pair, and then in all the abdominal segments we have done 1 spiracle. So spiracles, these are openings जिसके through the air will come inside. अब spiracle किससे follow होता है? Spiracle is followed by what? So we will do this diagram individually now. Each spiracle, this is an opening. यहाँ से air अंदर आती है. ये spiracle, it is followed by a thick sac-like structure और इसके बाद ये ट्रकिया रहता है. So ये है spiracle. उसके बाद ये sac-like structure is called atrium. Then this is the trachea. And this trachea, it is going to have these spiral thickenings जो उसको collapse नहीं होने देते हैं. Trachea is going to have these spiral thickenings, these rings, which will not let it collapse. Spiral thickenings will not let the trachea collapse. And आगे जाके ये जो trachea है, it divides into branches. It divides into branches. So these branches of the trachea, they are called tracheoles. तो देखो स्पाइरकल से एयर यहाँ पे आती है एट्रियम में, उसके बाद ट्रकिया के थ्रू पास ऑन होती है, और फिर ये जो ट्रकियल ब्रांचेस हैं, जो ट्रकियोल्स हैं,
वो एक एक टिश्यू तक पहुंचते हैं. सो हियर आई कैन हैव द टिश्यू, मतलब कि पूरी बॉडी कॉकरोच की. तो ये ट्रकियल ट्यूब्स जो हैं दे आर प्लेस्ड लैटरली ऑल्सो एंड दे आर प्लेस्ड लॉन्जिट्यूडनली ऑल्सो. आई विल शो यू द डायग्राम. ये देखो, ये स्पाइरकल के बाद वी हैव दिस ओपनिंग दैट इज द एट्रियम. उसके बाद ये ट्रकिया. सो वी आर गोइंग टू डू दिस. See, and all these tracheal tubes, they will be interconnected with each other. All these tracheal tubes, they will be interconnected with each other. So ये एक ट्यूब है. So this is a tube. Similar it will be from this side also. सेम ये साइड से भी ट्रकियल ट्यूब बनेगा जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. See. So you have this tracheal tube. एक लॉन्जिट्यूडनल ट्रकियल ट्यूब रहेगा एंड देन ये जो दो लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्स हैं ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे. सो ये ट्रांसवर्स ट्रकियल ट्यूब्स बन गए. What you have to understand is not so complex. You just understand कि ये जो ट्रकिया है ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इसका नेटवर्क. यहाँ से एयर अंदर आएगी, स्पाइरकल के थ्रू, एट्रियम के थ्रू ट्रकिया से पास ऑन होगी और ये पूरे ट्रकियल ट्यूब्स के थ्रू बॉडी के वेरियस टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ट्रकिया से लंग्स में जाएगी एयर, वहाँ पे डिफ्यूजन होगा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का. सच इज नॉट द केस. इट इज डायरेक्टली गोइंग टू डिफ्यूज विद द टिश्यू लेवल. हर टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगा थ्रू दीज ट्रकियल ट्यूब्स, थ्रू दीज ट्रकियोल्स. टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज होगा एयर का. सो यहाँ पे अभी लेबल करेंगे. वी हैव लेबल्ड द स्पाइरकल्स, वी विल लेबल द एट्रियम, वी विल लेबल द लॉन्जिट्यूडनल tracheal trunk. Then this is the horizontal tracheal trunk. If we see this one part कि आगे जाके ये कैसे कनेक्ट होता है. So it is the spiracle, then the atrium, then the trachea. And each trachea is going to have these branches which are called tracheoles. ये tracheoles, ये जो branches हैं ये एक एक टिश्यू लेवल पे पहुंचेगी बॉडी में. So see the system is widely distributed. पूरी बॉडी में ये ट्रकियल ट्रंक्स हैं जिसकी आगे जाके जो ब्रांचेस रहेगी वो टिश्यू लेवल पे पहुंचेगी और ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे. So you have to remember about these tracheal trunks. You have to remember about the spiracles. Mostly important MCQs are with the spiracles. They are with the branches of the trachea, that is the tracheoles. Tracheoles are the branches of the trachea. That you have to remember. Now some points. First and second spiracle. First and second spiracle, it always remains open. Always remains open. The rest of the spiracles, so first and second pair, मतलब दोनों साइड के first and second pair of spiracles, it always remains open. Rest of the spiracles, they can open and close. Rest of the spiracles can open and close
depending on when the cockroach is breathing, and the openings are regulated by sphincters. स्पिंक्टर मतलब वॉल्व जैसा कोई चीज जो ओपनिंग का क्लोज, कब ओपन होगा क्लोज होगा उसको रेगुलेट करेगा. सो ओपनिंग्स आर रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर्स. एमसीक्यू, फर्स्ट और सेकंड स्पाइरेकल हमेशा ओपन रहेगा. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वहां से एयर हमेशा अंदर आती रहेगी. बाकी सारे स्पाइरेकल्स की ओपनिंग स्पिंक्टर्स से रेगुलेटेड रहेगी. They will open and they will close depending on when the cockroach is breeding. कब अंदर लेना है तब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है. Now, muscles which will take part in respiration. कौन से muscles will take part in respiration? So simple है. We have the tergum above dorsally. ये अगर डॉर्सल सर्फेस है तो ये टर्गम है. ये अगर वेंट्रल सर्फेस है तो ये स्टर्नम है. तो ये मसल्स को बोलते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स. टर्गोस्टर्नल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं. दीज मसल्स विच विल टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन इन द कॉकरोच, दे आर टर्गोस्टर्नल मसल्स. अब जैसे हमारी बॉडी में है, व्हेन हम इंस्पिरेशन करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तब वो एक्टिव प्रोसेस होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पर कॉकरोच की बॉडी में रिवर्स है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इट्स अ रिवर्स प्रोसेस. इफ वी कंपेयर इट टू ह्यूमन बीइंग्स, वी विल सी इट इन रेस्पिरेशन चैप्टर. यहाँ पे इंस्पिरेशन मीन्स टेकिंग द एयर इनसाइड. टेकिंग द एयर inside is inspiration. So जब हम एयर अंदर लेंगे यहाँ पे, it is a passive process. Passive means it will not require energy. It is a passive process. Taking the air inside is a passive process. Muscles relax करते हैं inspiration के टाइम पे. So inspiration in case of cockroach is a passive process, does not require energy. Muscles they relax. इसी का opposite अगर expiration लिखेंगे, expiration is giving out of the air. So giving the air out. So expiration is an active process. Active process है, मतलब muscles contract करेंगे. मसल्स काम कर रहे हैं, मसल्स एनर्जी खर्च कर रहे हैं. ये जो किस्सा है ह्यूमन बीइंग्स में, ये उल्टा होता है. इन अस इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. पर कॉकरोच में ये प्रोसेस रिवर्स होता है. दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं है, बट सिर्फ इंस्पिरेशन पैसिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन एक्टिव प्रोसेस है इन द केस ऑफ कॉकरोच. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. ऑलराइट, अब जब एक्टिविटी में रहता है, व्हेन द कॉकरोच इज एट एक्टिविटी और इन एक्टिविटी, जब कॉकरोच चल रहा है, घूम रहा है, एक्टिविटी में है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा. ओके, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑक्सीजन स्पेंड हो रहा है. तो एयर विल बी टेकन इनसाइड. एयर विल बी टेकन इनसाइड बाय द स्पाइरेकल. मतलब कॉकरोच की बॉडी में जब ऑक्सीजन कम होगा एक्टिविटी के टाइम पे, इट इज दैट टाइम when it is going to take the air inside by the spiracle. जब कॉकरोच at rest रहेगा, when the cockroach is at rest, तब जो ये ट्रकिया है, it is filled with tissue fluid. It is filled with tissue fluid. ट्रकिया और ट्रकियोल के जो ब्रांचेस हैं
वो पूरा टिश्यू फ्लूइड से भर जाता है एंड डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन धीरे धीरे जाता रहता है. सो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन मूव्स टू द टिश्यूज स्लोली. क्योंकि जब कॉकरोच रेस्ट पे है तब ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो ट्रकिया है वो फिलअप हो जाता है टिश्यू फ्लूइड के साथ, और वो टिश्यू फ्लूइड में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है वो धीरे धीरे टिश्यूज के पास जाता रहता है. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दैट इज डिफ्यूज्ड इन द फ्लूइड, it moves to the tissues slowly. So I'll show you this in case of this picture. देखो, जब रेस्ट की कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है जब एक्टिविटी है. अभी जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है ये एक्टिविटी वाली कंडीशन है. टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, इट इज गोइंग टू ट्रैवल. ये पूरा ट्यूब खाली है और यहाँ से ब्रांचेस से जाएगा टिश्यू के पास. डायरेक्टली ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू ऑल द टिश्यूज. यहाँ पे कोई लंग्स नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गन नहीं है. ऑक्सीजन इज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द टिश्यूज. बट व्हेन वी सी जब ये रेस्ट पे रहेगा, अब यही कंडीशन अगर हम रेस्ट पे बनाएंगे तो स्पाइरकल क्लोज रहेगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, द स्पाइरकल इज क्लोज्ड and all this it is filled with tissue fluid. ये जो ट्रकिया है वो मिलके एक यहाँ पे सेल भी बना लेते हैं which is called tracheolar cell, जो सिक्रीट करता है टिश्यू फ्लूइड ये पूरे ब्रांचेस में एंड सराउंडिंग इट ऑल्सो, और पूरे ये ट्रकियल ट्यूब में भी. तो ये फ्लूइड भरा हुआ है. अगर फ्लूइड भरा हुआ है और ये स्पाइरकल क्लोज्ड है तो यहाँ से एयर अंदर नहीं आ सकती है. बट कॉकरोच को इस टाइम पे एट रेस्ट चाहिए भी नहीं नया एयर, बिकॉज कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे हैं. एट रेस्ट ऑक्सीजन लेवल्स आर गुड इन द बॉडी. सो ये टिश्यू फ्लूइड में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहेगा वो धीरे धीरे डिफ्यूज होता रहता है टिश्यूज में. उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. बट जब कॉकरोच एक्टिविटी में आएगा तब ये टिश्यू फ्लूइड ड्रेन हो जाता है. ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, ट्रकियल ट्यूब खाली हो जाएगा, ये ट्रक्यूल्स खाली हो जाएंगे, स्पाइरकल ओपन हो जाएगा और यहाँ से फिर से आएगा ऑक्सीजन अंदर. सो हमको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जब एक्टिविटी में है कॉकरोच, जब ऑक्सीजन लेवल्स कम हैं, उस समय स्पाइरकल्स ओपन रहेंगे और एयर आएगी अंदर ट्रकियल ट्यूब्स के थ्रू. जब रेस्ट पे है उस समय ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्पाइरकल्स क्लोज्ड रहेंगे और ये ट्रकिया जो है वो टिश्यू फ्लूइड से फिल्ड रहेगा और टिश्यू को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन मिलता रहेगा यहाँ से ये डिफ्यूज्ड फ्लूइड से. सो एक्टिविटी के टाइम पे स्पाइरकल्स ओपन रहेंगे. एक्चुअली बोला जाता है कि सिर्फ एक्टिविटी के टाइम पे ही कॉकरोच ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है. हमारे केस में ऐसा नहीं है. इवन इफ आई एम सिटिंग आई एम ब्रीदिंग. ऐसा नहीं है कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तभी हम ब्रीथ करते हैं. बट कॉकरोच के केस में व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, जब अबंडेंट ऑक्सीजन है बॉडी में, तब स्पाइरकल्स क्लोज होके वो ब्रीथ नहीं करता है. एक्टिविटी के टाइम पे जब ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जाएंगे बिकॉज एक्टिविटी हो रही है, तो कॉकरोच स्पाइरकल्स ओपन करके ऑक्सीजन को लेता है अंदर. ये ऑक्सीजन डायरेक्टली ट्रैवल होता है टिश्यूज को थ्रू द ट्रकिया एंड द ट्रक्यूल्स दैट आर द ब्रांचेस. सो एट द डिस्टल एंड, अगर हम ये ट्रकिया पकड़ें, इफ वी कंसिडर दिस एज द ट्रकिया, तो ये ट्रकिया का प्रॉक्सिमल एंड है. वन टुवर्ड्स द स्पाइरकल इज द प्रॉक्सिमल एंड और ये ट्रकिया का डिस्टल एंड है. सो एमसीक्यूज में ट्रकिया के डिस्टल एंड पे ये ब्रांचेस रहेंगे दैट आर द ट्रक्यूल्स.
ट्रकिया के डिस्टल एंड पे ब्रांचेस रहेंगे दैट आर ट्रक्यूल्स. प्रॉक्सिमल एंड पे ट्रकिया इज अटैच्ड टू द स्पाइरिकल. डिस्टल एंड पे ये सेल रहेगा दैट इज द ट्रक्यूलर सेल, जो प्रोड्यूस करेगा टिश्यू फ्लूइड, फिलअप कर देगा ट्रकिया को फ्लूइड से और हेल्प करेगा डिफ्यूजन में. इट इज गोइंग टू हेल्प इन डिफ्यूजन. सो नाउ सी दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर स्पाइरिकल्स. कितने पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होंगे दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड. देखो, प्लूरल साइड पे रहेंगे मतलब लैटरल साइड पे रहेंगे 2 पेयर्स थोरैसिक, 8 पेयर्स अब्डोमेन. थोरैसिक वाले कहाँ कहाँ रहेंगे हमने देखा है, अब्डोमेन वाले फर्स्ट 8 सेगमेंट्स में रहेंगे, दैट वी हैव सीन. देन इफ वी सी ये लोकेशन, ये डायग्राम अगर आपको समझ रहा है तो यू विल अंडरस्टैंड. स्पाइरिकल्स ओपनिंग्स होंगी जहाँ से एयर अंदर आएगी. तो एयर अंदर कब आ सकेगी? जब ये ट्यूब खाली है, जब ट्रकिया खाली है तब एयर अंदर आ सकेगी. अगर ट्रकिया फ्लूइड से भरा रहेगा तो एयर अंदर नहीं आएगी. स्पाइरिकल्स क्लोज्ड रहेंगे. वो फ्लूइड से भरी वाली फेज रहेगी जब कॉकरोच रेस्ट पे है, जब उसको बाहर के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये जो ट्रकियल ट्यूब्स हैं, अब पूरी टिश्यू पे पहुंचना है, पूरी बॉडी पे पहुंचना है ऑक्सीजन लेके, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा बॉडी में. ट्रकियल ट्यूब्स बॉडी में हर जगह पे ओपन होंगे और अपनी ब्रांचेस देंगे जो हर एक टिश्यू तक पहुंचेगी कॉकरोच की बॉडी के. सो ये लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्स रहेंगे और ये ट्रांसवर्स ट्यूब्स रहेंगे, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल या वर्टिकल ट्यूब्स. They will be interconnected to each other. Spiracles, they will be the lateral openings. उनके थ्रू एयर अंदर आएगी. रेस्ट के टाइम पे ऑक्सीजन जब अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे हैं, तब ये टिश्यू फ्लूइड से भर जाएगा और टिश्यू फ्लूइड के थ्रू धीरे धीरे डिफ्यूजन, टिश्यू फ्लूइड में जो मिक्स्ड ऑक्सीजन है उससे रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती रहेगी. लेकिन एक्टिविटी के टाइम पे ये टिश्यू फ्लूइड ड्रेन आउट हो जाएगा, ट्रकिया खाली हो जाएगा और स्पाइरिकल से फिर से अंदर कॉकरोच एयर लेगा. दैट मीन्स स्पाइरिकल ये ओपनिंग्स हैं जो क्लोज भी होती है, ओपन भी होती हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड स्पाइरिकल्स आर ऑलवेज ओपन, दे ऑलवेज रिमेन ओपन. रेस्ट ऑल कैन ओपन एंड क्लोज एंड देयर ओपनिंग्स आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स. और अगर हम मसल्स देखें रेस्पिरेशन में कौन से काम करते हैं, तो टर्गो और स्टर्नाइट के बीच के ये टर्गो स्टर्नल मसल्स, दे आर द रेस्पिरेटरी मसल्स इन केस ऑफ कॉकरोच. दैट इज द ओनली MCQ दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड इट इज अ रिवर्स प्रोसेस. इंस्पिरेशन हमारी बॉडी में एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च करते हैं. कॉकरोच के इसमें इंस्पिरेशन पैसिव प्रोसेस है, मसल्स रिलैक्स करते हैं तब एयर अंदर आती है. एक्सपिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस when the muscles contract. So at activity and at rest, we have seen these two conditions which take place in the breathing of the cockroach.